Hello everyone. We are discussing the topics related to geomorphology unit under the geography series. We have already taken the question of 2024 and that question was related to volcano topic and that topic has been discussed in detail. If you have not seen that video yet, go to my YouTube channel and you can find that video. That video has been discussed in two parts, Volcano 1 and Volcano 2. Today, we'll take up a question from 2023, and this question of 2023 is related to the topic weathering. So, since we are covering geomorphology unit, so we'll take up the questions that have been asked in the last 5 years, and we'll discuss those topics in detail. So, let's see the question that we are supposed to take up today. This is the question. The question is related to the topic on weathering, and let's read the question and then we'll, after we have read this topic, discuss this topic in detail, the topic weathering, then we'll find out the answer as well. So question says that consider the following statements. Rainfall is one of the reasons for weathering of rocks. That is the first statement. Rainwater contains carbon dioxide in solution and rainwater contains atmospheric oxygen. And based on these three statements, the question has been asked. The question is, which one of the following is correct in respect to the above statements? So certain four options have been given, and based on these statements, these options have been framed. So accordingly, we'll figure out the right answer to this question. Okay, so this shows that this is the question that requires the knowledge of topic weathering. So let's see the topic in detail and then we'll come to the question. We'll see whether we are in position to solve that question or not. So topic weathering, the first thing, what exactly the term weathering means in geography. So this term refers to physical disintegration and chemical decomposition of rocks. So a process which is responsible for physical disintegration and chemical decomposition of rocks is called weathering. I hope it is clear. Weathering का मतलब जिसमें physical disintegration हो और chemical decomposition हो, उस process को बोला गया है weathering. So weathering is of three types. तीन प्रकार के weathering हम लोग पढ़ते हैं. One is called physical weathering. Second is called chemical weathering. And third type is called biological weathering. These are the three types that we need to know with respect to weathering. So let's see them one by one. First, coming to physical weathering. Physical weathering. So please try and understand the topic. I'll give you the annotation of this PPT as well.
So whatever I am writing, I'll share the drive with you so that you can download the annotation of this. So right now focus on the discussion that we are having. Notes अगर नहीं भी बना पा रहे हैं तो that is not a big problem. Later on I'll share the drive which will have all these PPTs. Okay. So physical weathering का मतलब ये है weathering जिसमें फिजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व है. सो नाम से ही क्लियर है कि द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स और वीकनिंग ऑफ रॉक्स और लूजनिंग ऑफ रॉक्स. हो सकता है जो रॉक है वो लूजन अप हो सकता है वो ब्रेक डाउन कर जाए. जब उसमें फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं दे आर दी फिजिकल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर. जब इन फैक्टर्स की वजह से वेदरिंग होगी तो सच वेदरिंग प्रोसेस इज नोन एज फिजिकल वेदरिंग. ओके, तो देखते हैं. तो इसमें अगर फर्दर डिवीजन करें तो फर्स्ट इज कॉल्ड थर्मल वेदरिंग. थर्मल वेदरिंग नाम से ही क्लियर है. द वर्ड थर्मल इज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर. तो लेट्स सपोज कि एक रॉक है which is subject to continuous heating and cooling. थोड़े टाइम के लिए उसकी हीटिंग होती है और थोड़े टाइम बाद वो कूल होना शुरू हो जाता है. तो देयर इज अ रॉक, इट इज सब्जेक्ट टू continuous process of heating and cooling. So a rock which is subject to heating and cooling frequently, तो होगा क्या? हीटिंग की वजह से वी नो कि देयर इज अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड. मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था कि हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन क्यों होगा. मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ जाएगी, वो दूर भागने की कोशिश करेंगे. तो हीटिंग की वजह से उस रॉक की टेंडेंसी क्या होगी? एक्सपैंड करने की. सिमिलरली कूलिंग की वजह से दैट रॉक विल हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट. जस्ट अपोजिट टू इट, किसी चीज को कूल करोगे तो it will have a tendency to contract. So when a rock is subject to continuous heating and cooling, it means that it will undergo the process of expansion and contraction regularly with change in temperature. तो continuous expansion, फिर contraction, फिर expansion, फिर contraction. So इसकी वजह से क्या होगा? वो rock weaken up हो जाएगा, वो weak हो जाएगा. And after some time it will break down. So that process is called thermal weathering. Is that okay? So thermal weathering कब हो रहा है? जब a rock is subject to the frequent heating and cooling phenomena, and due to which it is undergoing the process of expansion and contraction regularly, resulting into breaking down of the rocks. क्योंकि अल्टीमेटली वेदरिंग का पर्पस क्या है? ब्रेक डाउन. इज दैट ओके? सो this type of weathering is called physical weathering. So what do you think? इस टाइप की वेदरिंग प्रोमिनेंट कहाँ होगी? कहाँ पे मैक्सिमम, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में ये प्रोमिनेंटली देखी जाएगी? तो इट इज डोमिनेंट, दिस टाइप ऑफ वेदरिंग is dominant, thermal weathering is dominant in tropical desert areas. ट्रॉपिकल डेजर्ट में दिन में the day temperature is very high and night temperature is very low.
सो डायोरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, डायोरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब डे एंड नाइट के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है. सो डायोरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर in desert areas is very high, due to which thermal weathering would be common in desert areas, or call it arid and semi-arid climatic conditions. So thermal weathering is okay. अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है, वेदरिंग प्रोसेस की जब भी हम बात करेंगे तो वेदरिंग इज एन इन सीटू प्रोसेस. सो इफ आई राइट ओवर हेयर, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हमने, इट इज एन इन सीटू प्रोसेस. इन सीटू प्रोसेस का मतलब है कि जहां पर रॉक का ब्रेकडाउन होगा वो रॉक वहीं पर प्रेजेंट रहेगा. वेदरिंग का काम है केवल रॉक को ब्रेक डाउन करना, रॉक को अनकंसोलिडेट करना, उसको लूजन अप करना, उसको वीकेन करना. उसका काम मूवमेंट से नहीं है. मूवमेंट इज रिलेटेड टू एक अनदर टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी में ही, दैट इज कॉल्ड मास वेस्टिंग, या दूसरा टॉपिक दैट इज द इरोजन और डिपोजिशन में जब हम लोग बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट कि देर आर सर्टेन एजेंट्स, there are certain agents जैसे wind है, then moving water, तो they are responsible for the transport. तो weathering phenomena is not responsible for transport. तो in situ का मतलब है कि there would be no transport of the weathered material, no transport of weathered material. Weathered material को we also call it sediment. जो वेदर्ड मटेरियल है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेडिमेंट. ठीक है, तो सेडिमेंट का देर इज नो ट्रांसफर इन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग किसी भी टाइप में. एनीवे, सो थर्मल वेदरिंग इज डन. नाउ कम टू फिजिकल वेदरिंग में ही सेकेंड टाइप देखते हैं. सो अंडर फिजिकल वेदरिंग सेकेंड इज प्रेशर वेदरिंग. नाम से ही क्लियर है कि फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो प्रेशर है. वेदरिंग के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज प्रेशर. तो मान लेते हैं कि ये कोई रॉक है, ये कोई एक रॉक की लेयर है और इसके ऊपर देर आर ओवरलाइंग रॉक्स अबव दिस लेयर, जिस लेयर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो जो ओवरलाइंग रॉक्स हैं above this layer, let's name this layer as A. तो लेयर A पर जो ओवरलाइंग रॉक्स हैं, these rocks will exert some pressure on the layer A. तो वो रॉक will have tendency to bend, ये बेंड कर जाएगा. तो somehow इसका फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा. अगर मैं इस पे दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बेंड कर सकता है ड्यू टू दी overlying rocks present. And let's say after some time these overlying rocks have been removed by the process of erosion. वाटर आया और इन रॉक को कंटिन्यूसली इरोड करके और उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया, वहां से हटा दिया, इस लेयर ए के ऊपर से हटा दिया. तो जो लेयर ए है इट विल हैव टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि वो ऐसा रहना चाहता है, वेट की वजह से दब गया था. तो जो ये शेप आया था, नाउ इट विल रीगेन दी स्ट्रेट शेप अगेन. तो ये जो प्रोसेस हो रहा है कि इट इज ट्राइंग टू रीगेन इट्स पोजीशन, उस प्रोसेस में दिस लेयर ए माइट ब्रेक एंड दिस ब्रेकिंग इज नोन एज वेदरिंग. और ये वेदरिंग क्यों हो रही है? प्रेशर चेंज की वजह से. पहले प्रेशर लगाया तो उसने बेंड कर दिया उस लेयर को, और जब प्रेशर वो हट गया तो रॉक को फिर से अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश किया. और जब वो रीगेन करने की कोशिश किया, इन दिस प्रोसेस इट वेंट
the process of weathering. So such weathering is known as pressure weathering. अगेन फिजिकल फैक्टर, ऐसे ही एक और टेम्परेचर से ही रिलेटेड एक फैक्टर है कॉल्ड, एक अनदर टाइप है कॉल्ड फ्रॉस्ट वेदरिंग. फ्रॉस्ट वेदरिंग देखते हैं. लेट्स से कि देयर इज सम रॉक और इस रॉक में देयर इज सम होल प्रेजेंट. इसमें कोई क्रैक है, कोई फिसर है या कोई होल प्रेजेंट है. और दिस रॉक है, दिस होल हैज सम वाटर प्रेजेंट इनटू इट. दिस होल जो रॉक में प्रेजेंट है उसमें वाटर भी है. एंड लेट्स से इन द नाइट टाइम जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस क्रिस्टल्स, फ्रॉस्ट. एंड ड्यूरिंग द डे टाइम जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो दिस फ्रॉस्ट अगेन कन्वर्ट्स इनटू वाटर. अपने को पता है कि फ्रॉस्ट या आइस क्रिस्टल का वॉल्यूम वाटर से ज़्यादा होता है, तो ये वॉल्यूम ज़्यादा होगा. तो जब रात में वो फ्रॉस्ट में कन्वर्ट होगा द सेम वाटर, इट विल exert again some pressure on the surrounding walls जो होल में प्रेजेंट है. इन सराउंडिंग वॉल्स पे प्रेशर लगेगा ड्यू टू एक्सपेंशन इन दी आइस क्रिस्टल्स. तो ये जो सराउंडिंग वॉल है होल की या क्रैक की, दे विल हैव अ टेंडेंसी अगेन टू ब्रेक डाउन. तो फिर से दिस इज कॉल्ड वेदरिंग. क्यों हो रहा है? फ्रॉस्टी कंडीशंस. तो दिन में वो वाटर बन जा रहा है और रात में वो जो है आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है या फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है. मेक सेंस? तो यहां पर भी नॉन कंसोलिडेशन हो रहा है, रॉक्स लूजन अप हो रही हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट वेदरिंग. ये किस क्लाइमेटिक कंडीशन में होगा? तो अपने को पता है ट्रॉपिकल रीजन में अगर होगा ये, अगर ये ट्रॉपिकल रीजन में अपने को मिलेगा तो दिस वुड बी सीन across the high altitudes of mountains. जब आप माउंटेन्स पर ऊपर पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है, तो रात में और कम हो जाएगा, पता चलेगा 0 डिग्री से टेम्परेचर कम हो गया, आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया. तो ट्रॉपिकल रीजन में हायर माउंटेनस रीजन में मिलेगा. एंड मोस्टली इट वुड बी सीन इन द ट्रॉपिकल रीजन कॉल्ड मिड लैटिट्यूड एरियाज, मिड लैटिट्यूड्स में एंड पोलर एरियाज में या हायर लैटिट्यूड्स में बोलूं तो इन दीज एरियाज frost weathering would be common. So this process is common or dominant in such climatic conditions. Now come to second type of weathering, that is called chemical weathering. तो physical weathering में हमने 3 टाइप डिस्कस किया. Now come to chemical weathering. Chemical weathering a process जिसमें केमिकल रिएक्शन से रॉक्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं. So in this process chemical reactions are responsible for breaking down the rock, for loosening up the rock, for unconsolidation of the rock. So chemical reactions की वजह से chemical weathering, नाम से क्लियर है, बहुत डिफिकल्टी यहाँ होनी नहीं चाहिए. तो what are the different types of chemical reactions that happen, उसको देख लेते हैं. तो starting with the first chemical reaction, let's call it carbonation.
कार्बोनेशन। सो कार्बोनेशन में क्या होगा कि CO2 will react with water, will form carbonic acid. Although carbonic acid is a weak acid, but है तो acid ही. And this carbonic acid, when reacts with some minerals present in the rock, don't you think this acid will responsible for dissolution, for breaking down the rock? Yes, for chemical decomposition of the rock. तो जो minerals हैं, they will undergo chemical decomposition. Yes, so कार्बोनेशन हो सकता है, तो मतलब CO2 और वाटर अगर प्रेजेंट हो जाए किसी रॉक के आस पड़ोस में, तो दैट रॉक माइट अंडरगो कार्बोनेशन प्रोसेस, मतलब वेदरिंग हो जाएगी उसकी. कौन सी वेदरिंग? टू बी स्पेसिफिक, केमिकल वेदरिंग. मेक सेंस? दूसरा टाइप इसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, दूसरा प्रोसेस दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल वेदरिंग, डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन का मतलब पता है अपने को कि सर्टेन मिनरल्स जैसे कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, बहुत सारे सल्फेट के कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर, नाइट्रेट, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं, दे डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन बन गए मतलब वो रॉक बेसिकली केमिकली डिकम्पोज हो गया. केमिकली डिकम्पोज हो गया मतलब वेदरिंग हो गई. इज दैट ओके? सो डिसोल्यूशन माइट बी अनदर प्रोसेस. Another process under the chemical weathering could be hydration. जैसे आपने देखा होगा रस्ट का फॉर्मेशन, लोहे में जंग लग जाती है, आयरन में रस्टिंग हो जाती है. तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल H2O जिसका फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बट यू शुड हैव द आइडिया कि हो क्या रहा है. हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल gets attached with certain minerals present in the rock. Let's say फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट है, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है. इस आयरन ऑक्साइड से आयरन हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा ये मिनरल, विच इज नथिंग बट दी रस्ट. तो केमिकली डिकम्पोज हो गया. इज दैट ओके? तो केमिकल वेदरिंग में और भी रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे फोर्थ रिएक्शन आई कैन से हाइड्रेशन बताया मैंने, तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ hydrolysis also. Hydration and hydrolysis are two different chemical reactions, they are not the same thing. Hydrolysis में क्या होगा कि water breaks into H plus and OH minus, and this H plus and OH minus will react with some minerals present in the rock. लास्ट केस में, हाइड्रेशन के केस में क्या हो रहा था, वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जा रहा था. जैसे अगर मैं आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखूं तो FeOH2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं FeH2O2. यस, तो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल आयरन ऑक्साइड के साथ में अटैच हो रहा है, और यहां पर water is breaking into two ions H plus and OH minus, और फिर वो मिनरल से रिएक्ट करके कुछ सोल्यूशन बना रहे हैं. यस, जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, सोडियम हाइड्राइड
reacts with water, it forms sodium hydroxide plus hydrogen gas. तो यहां पर water is first breaking into ions and those ions are reacting with the minerals. बट अगेन केमिकल डिकम्पोजिशन हो गया तो वेदरिंग हो गई, इसलिए इसको हाइड्रोलिसिस विच इज द पार्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग. एक और बता देता हूं मैं, 5 हो जाएगा. जैसे यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ये सब हम लोगों ने स्कूल डेज में केमिस्ट्री में पढ़ा था. तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लेट्स से किसी रॉक में आयरन प्रेजेंट है, जैसे बेसाल्ट अपने को पता हो तो बेसाल्ट में आयरन प्रेजेंट होता है. आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके FeO बना लिया, आयरन ऑक्साइड बना लिया. और अगर इस रॉक में कहीं से ह्यूमिडिटी आ जाती है, कहीं से वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है, लेट्स से H2O, फिर से ये रस्ट बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. यस, तो ऑक्सीडेशन की वजह से भी केमिकल वेदरिंग हो रही है. मेक सेंस? तो वंस यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि दैट क्वेश्चन हैज लिंक विद द केमिकल वेदरिंग. सो बाद में देखेंगे. अभी नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, लास्ट टाइप, बायोलॉजिकल वेदरिंग. बायोलॉजिकल वेदरिंग मैंने 3 टाइप बोले थे, वेदरिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो बायोलॉजिकल वेदरिंग, दिस इज द थर्ड वन. बायोलॉजिकल नाम से ही क्लियर है, नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट जो फैक्टर हैं दे आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स. जो फैक्टर्स ऑफ वेदरिंग है दे आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स, living organisms are responsible for weathering process. जैसे बेस्ट एग्जांपल इज ह्यूमन बीइंग. आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से रॉक को तोड़ दीजिए, या आपने जैसे रॉक कटिंग की किस पर्पज से, कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए. तो बेसिकली यू आर ब्रेकिंग दी रॉक, चाहे टेक्नोलॉजी का यूज करके और चाहे आप खुद ही हथौड़ी लेके जुड़ जाइए. Both the cases are possible, but human being, the living organisms are responsible for the weathering, right? So that is why it is called biological weathering. तो एक तो human being कर सकते हैं. Human beings are the biggest agent of weathering. If we talk about today, so today human beings are the most important factor responsible for weathering. जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपको एरिया क्लियर अप करना पड़ेगा, तो वहां भी आप रॉक तोड़ रहे हैं. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं तो भी आप रॉक तोड़ रहे हैं. प्लाविंग कर रहे हैं तो जो छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स हैं वो फर्दर उनका वेदरिंग हो रहा है. मेक सेंस? सेकेंड, यू नो सर्टेन पाइनियर स्पीशीज, इकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे लाइकेंस, मॉसेस, फंगाई, सर्टेन बैक्टीरिया. इनको पाइनियर स्पीशीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई अगर बेयर रॉक है, मतलब उसमें कोई भी सॉइल का फॉर्मेशन नहीं है, तो सबसे पहली स्पीशीज जो उस पर इन्वेड करती हैं दे आर लाइकेंस, मॉसेस, फंगाई एंड बैक्टीरिया. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पाइनियर स्पीशीज. तो वो उसके ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेदरिंग कर रहे हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंडर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं. एनी नेक्स्ट यू कैन से plants and trees. Let's say एक ट्री है और उसके रूट्स का ग्रोथ हुआ और वो रूट्स पेनिट्रेट कर गए रॉक में, तो दे विल ब्रेक द रॉक.
Yes or no? So plants and trees are responsible for weathering process. You know certain burrowing animals, जैसे रैट हो गया, चूहा, तो अपना गड्ढा बनाएगा, पहले अपना हैबिटेट बनाएगा, उस प्रोसेस में this would be responsible for breaking down the rock. Another example could be earthworm. So these are the biological living factors which are responsible for weathering, इसलिए इसको biological weathering बोला. So these are the different types of weathering. This is what you need to know about weathering. Now come to the question. Let's see the question, whether we are in position to solve this question or not. Question बोलता है कि rainfall is one of the reasons for weathering of rocks. Rainfall होगा तो बारिश होगी तो पानी रहेगा. तो अपने को पता है कि वाटर केमिकल वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, डिसोल्यूशन हो रहा था, आयरन ऑक्साइड आयरन हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था. तो दिस मेक सेंस. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन. एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है. दिस रेन ड्रॉप इज फॉलिंग डाउन, so it will mix with the carbon dioxide as well. So rainwater definitely contains carbon dioxide. Yes or no? उस rainwater में जो the water which is falling under the pull of gravity, it will mix with the CO2 present in the atmosphere. तो rainwater contains CO2, ये बात भी correct है. Yes. थर्ड स्टेटमेंट बोलता है रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. ऑक्सीजन भी मिक्स हो जाएगा सर, बिल्कुल. बट क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट. क्वेश्चन ये नहीं है सर. अगर ये पूछता तो तूने स्टेटमेंट करेक्ट थे, अकॉर्डिंगली हम लोग जो ऑप्शन दिया होता वी कुड हैव मार्क्ड इट. बट क्वेश्चन इज सेइंग कि विद रिस्पेक्ट टू द अबव गिवन स्टेटमेंट्स Which one of the following is correct? नीचे जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है उसमें कौन सा करेक्ट है. तो पहला देखते हैं. बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 इस इन दोनों स्टेटमेंट की बात कर रहा है, आर करेक्ट. तो ये बात तो ठीक है. दिस पार्ट इज करेक्ट. बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. क्वेश्चन इज सेइंग whether statement 2 and 3 are the explanation to statement 1 or not. That you need to figure out. तो statement 2 और 3 को एक बार फिर से देख लेते हैं. बोलता है कि statement 2 कि रेन वाटर है CO2. ये बात सही है. और पहले स्टेटमेंट में इट इज टॉकिंग अबाउट द रेन वाटर ओनली. तो सेकेंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट कि रेनफॉल की वजह से जो वेदरिंग हो रही है दैट इज हैपनिंग बिकॉज that rainwater is containing CO2. Is that okay? क्योंकि CO2 से कार्बोनेशन हो जाएगा. तो ये बात तो करेक्ट है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज एक्सप्लेनेशन टू द फर्स्ट. अब थर्ड को देख लेते हैं. रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वो भी करेक्ट है. उससे ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ऑक्सीडेशन का मतलब वेदरिंग हो गया, केमिकल वेदरिंग. तो these two statements are explanation to the first statement. So that is the reason that the answer to this question is A for Ahmedabad. So this is the right option. Answer to this is A. I hope this is clear. So this is how you solve a question. So once you have the knowledge, then you need to use that knowledge, as per the requirement of the question. जैसा ये permutation combination बनाएगा, accordingly will, mark the answer. So this is all about this topic weathering. See you in the next topic, that is again a topic of geomorphology, and that question was asked in 2023. We'll take up that topic in the next session. Thank you so much for being with me. Have a great day. See you soon.